جہاں تک خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی سوال ہے، ویسے تو اس پہ کوئی باقاعدہ ڈسکشنز پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے درمیان تو نہیں ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہوں اس کے وہ حالات جو بنتے جا رہے ہیں، اور یہ جس sort of سمت پہ خاص طور پہ پختونخوا کی سیاست، مگر جو پی ٹی آئی کی سیاست جس طرف وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے وہ خود ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس سے وہ وفاقی حکومت کو مجبور کرے کہ وہ سخت اقدامات لے۔ ان سخت اقدامات میں ایک آپشن، آئینی آپشن ضرور گورنر راج موجود ہے، مگر اس پہ کوئی باقاعدہ ڈیسیژن یا ڈسکشن ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ ڈاکٹر مزمل جی، فیض حمید کو آج 14 سال کی سزا ہوئی ہے، یہ بولا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کس وجہ سے پاکستان کی پارٹی کی؟ جی یہ ایک تاریخی فیصلہ ضرور ہے، اور جنرل فیض صاحب کو 14 سال سزا آج ملا ہے مختلف جرائم کے مطابق۔ جہاں تک مجھے اندازہ ہے شاید مزید تحقیقات اور انویسٹیگیشنز یا ٹرائلز ہونے ہیں۔ میرے سیاسی زندگی میں دو ایسے لوگ تھے جو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، جو اپنے وقت کے فرعون تھے، اور میں سمجھتا ہوں کسی کو جیل بھیجنے کا نہ صرف دھمکی عملی طور پہ بھیج بھی جاتا تھا، اور وہ طاقت کا نشہ میں پتہ نہیں کیا کیا دھمکیاں دیتا تھا کہ وہ اسی بھی نکال دے گا، وہ فلاں کر دے گا، وہ فلاں کر دے گا۔ انہوں نے یہ ہماری سیاست میں ایک بار پھر ایک بری روایت ڈالی تھی کہ نہ صرف کہ جو سیاسی حریف ہیں، مگر ان سیاسی حریف، ان سیاسی مخالف کے جو گھر کے عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور مریم شریف صاحبہ کو، بریال تاجپور صاحبہ کو جس انداز میں ٹارگٹ کیا گیا، اور پھر اس میں ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کو اسی زندگی میں ان ایکشنز کا نہ صرف جواب دینا پڑا، اب وہی اسی قسم کی مشکلات آج بھگت رہے ہیں، اور وہ متفق عمل ہے کہ وہ آج خود جناب جیل میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ جنرل فیض صاحب تھا جو اپنے طاقت کے نشے میں نہ کسی سیاستدان کو، نہ کسی میڈیا ہاؤس کو، نہ کسی ہماری سوسائٹی میں، اس نے اپنے عہد کے خلاف ورزی، اپنے کام کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا، اور آج ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی اسی زندگی میں ان کی جرائم کا جواب دینا پڑ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت تاریخی فیصلہ ہے۔ اب ویسے تو مکمل ڈیٹیلز مجھے موقع نہیں ملا نہ دیکھنے کے لیے، نہ اس کا تفصیل پہ پتہ کرنے کے لیے۔ میرا خیال میں اب آگے اس کے لیے بھی اپیل کے اور ایسے فورمز موجود ہوں گے۔ اپنے طور پہ تاریخی فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو توبہ بھی کرنا چاہیے اور اپنا زندگی کو ایسے گزارنا چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو کسی نہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو کوئی موقع دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے، تو اس ذمہ داری کو آپ کو صحیح انداز میں اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے۔ سر، اس سے جڑا ہوا ایک سوال ہے، ماضی میں لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا اور ظہیر الاسلام پر بھی اسی طرح کے الزامات تھے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں، سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی اس طرح کا ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں ان میں سے ایک کے خلاف تو ٹرائل ہوا تھا اور سزا ایٹسٹرا بھی ہوا تھا، دوسرا کے خلاف ابھی تک نہیں ہوا۔ میں کسی انڈیویجول کے بارے میں یا کسی اسپیسیفک کیس کے بارے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آج کا فیصلہ تاریخی ہے، اور وہ ضرور ایسے راستے کھولیں گے، ایک تو ایک واضح پیغام بھیجیں گے کہ جس قسم کی مداخلت، جس قسم کی غیر ذمہ دارانہ کام
जनरल फैज़ साहब कर रहे थे। उम्मीद ये है इस फैसले से, और अगर इस फैसले से पे अमल दरामद होता है, कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मज़ीद ना किया जाए। सर एक छोटा सा एक मिनट सर 27वीं तरमीम में NFC वार्ड को आप शिकायत हुआ पे निकलवाई है, अब दोबारा अखबार गश्त हो रही है कि 28वीं तरमीम आ रही है, और 28वीं तरमीम में नए सूबे और ये NFC वार्ड को दोबारा कहा जा रहा है कि आ रहे हैं। अगर ये 28वीं तरमीम आती है और दोनों चीज़ें आती हैं, क्या आप हमायत करेंगे? तो जहाँ तक 27th अमेंडमेंट की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती हैं कि इसमें हमारे लिए तो सबसे बड़ा कामयाबी ये था कि हमने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वादा किया था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ साहब की दस्तखत के मुताबिक कि हम आइनी अदालत बनाएंगे, वो आइनी अदालत भी हमने बनाया। उस आइनी अदालत को तमाम सूबे के बराबर का नुमाइंदगी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत ही पुरानी मुतालबा था, उसको भी यकीनी तौर पे अमली तौर पे हमने 27वीं तरमीम के मुताबिक ये आइनी अदालत को तमाम सूबों को बराबरी का नुमाइंदगी, और ये भी एक फ़ख्र की बात है कि जब से सबसे पहले जो उस आइनी अदालत का सरबराह है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस है, जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखता है। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो हम समझते हैं सियासी तौर पे हमारे मंशूर की जीत है, हमारा नज़रिया की जीत है, वो ये कि जो वफाकी हुकूमत की तजवीज़ था या डिज़ायर था कि NFC अवार्ड के जो हमने तमाम सूबों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया था 18वीं तरमीम को, और वो उसको हटाना चाहते थे, वो हमने रोका। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ा कामयाबी है। मैं समझता हूँ कि अगर वो शर्त जो सूबों को माली मसाइल को आइनी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ दिलवाता है, अगर वो शर्त मिटाया जाता तो उसका सबसे बड़ा नुकसान सूबा पंजाब को होता, और हमने वो 27th अमेंडमेंट के दौर में जो उनका कोशिश था वो रोक पाया। जहाँ तक 28th अमेंडमेंट की बात है, वफाकी हुकूमत ने हमसे इंगेज नहीं किया है, ना किसी नया सूबा बनाने में। ज़रूर जहाँ तक मुआशी स्पेस है वफाकी हुकूमत के लिए, और जो वफाकी हुकूमत का मुआशी मुश्किलात है, हुकूमत को हमें अप्रोच करने की ज़रूरत उस अंदाज़ में नहीं है। हम सबको पता है कि वफाकी हुकूमत का मुश्किलात है, मगर वो वफाकी हुकूमत का मुश्किलात का ज़िम्मेदार ना लाहौर के अवाम है, ना मुल्तान के अवाम है। FBR अपना फाइनेंशियल टारगेट्स मिस करते हैं। तो ये सोच कि FBR की कमज़ोरियाँ, FBR की गलतियाँ का बोझ लाहौर के अवाम को उठाना चाहिए या किसी और सूबे के अवाम को उठाया चाहिए, उसका बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही थी, कर रही है और करती रहेंगी। मगर हम चाहते हैं, हम समझते हैं बतौर मुहिब वतन पाकिस्तानी, बतौर एक वफाक परस्त सियासी जमा, कि हमें सब मिल के कोशिश करना चाहिए कि हम वफाक की जो मुश्किलात हैं उनको दूर किया जाए। उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद तजवीज़ है, और अप्रोप्रिएट फोरम पे जैसे NFC अवार्ड के फोरम्स पे और हुकूमत के साथ जो गुफ्तगू होते हैं उसके थ्रू हम अपने तजवीज़ देना चाहेंगे, जिससे हम समझते हैं कि हम सूबे के इख्तियारात कम किए बग़ैर, सूबे के माली ज़िम्मेदारियाँ कम किए बग़ैर, हम सब मिल के वफाक की ये मुआशी मुश्किलात दूर कर सकते हैं, और उस पर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करती रहेगी। इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अभी हम देख रहे हैं कि कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं है। सॉरी, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई, जबकि हम प्राइम मिनिस्टर की हर दूसरी स्पीच में यही सुनते हैं कि पाकिस्तान की मैशत जो है वो टेक ऑफ करने वाली है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। पाकिस्तान के अवाम आप जगह जगह गए हैं, देखा है किस कदर मुश्किलात का शिकार है। क्या कब ऐसा पॉसिबल होगा कि पाकिस्तान की माशी इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है इससे बाहर निकल सकेगा और हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो कुछ बेहतर होंगी, ताकि आम लोग जो है उनकी कुछ ज़िंदगी बेहतर हो? जहाँ तक मुआशी सूरत हाल है, अवाम के पास मुआशी मुश्किलात तो मौजूद ज़रूर हैं, मगर हुकूमत की ये मौक़िफ़ कि इन्होंने मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकाले हैं, ये मुआशी सूरत हाल को बेहतर करवाए हैं, उसमें भी कुछ हकीकत तो ज़रूर है। जब PDM ने हुकूमत संभाला तो उस वक्त
मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होता जा रहा था और जो मुआशी मुश्किलात तब थे, जो महंगाई का तूफ़ान तब था, जो बेरोज़गारी के मुश्किलात तब थे, वो तो अरूज पे थे। और आपको ये, हम सबको ये मानना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी टीम ने मुआशी पोजीशन से उन मुश्किलात से हमें निकाले। अब जहाँ तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल हकीकत नहीं है ये कहना कि कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। कुछ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़रूर हो रहा है, शायद हुकूमत मज़ीद चाहता है। मैं समझता हूँ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स पे फोकस करना चाहिए और पाकिस्तान को अपना उन सेक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए जिससे हम अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि जो सपोर्ट वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत मसलन ज़राई शोबे को दे सकते वो इस वक्त उतना नहीं दे रहे जितना हमें देना चाहिए। हमने सूबा सिंध में अपने जो छोटे किसान हैं जिनके पास 1 से लेके 25 एकड़ तक के जो किसान हैं उनको हमने सपोर्ट करने की कोशिश की। सूबाई हुकूमत से के ज़रिए उनको हम DAP सपोर्ट मुहैया कर रहे हैं, यूरिया सपोर्ट मुहैया कर रहे हैं ताकि ज़राई शोबे में तरक्की हो। ज़राई शोबे में तरक्की होंगे तो हम ना सिर्फ अपने मुल्क की जो ज़रूरियात पूरा कर सकते हैं मगर एक्सपोर्ट की सूरत में मुल्क की मईशत को फ़ायदा दिलवा सकते हैं। वैसे ही मुख्तलिफ शोबे हैं जिससे वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मज़ीद सपोर्ट दिलवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबडी। न्यूयॉर्क में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वफाकी हुकूमत के माशी मुश्किलात के ज़िम्मेदार इस्लामाबाद में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं। आज जो फैसला आया वो एक तारीख़ी फ़ैसला है। PDM के हुकूमत संभालते वक्त मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब था जबकि बानी PTI ने सियासत में नफरत इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाया। चिनोट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फैज़ हमीद का फैसला तारीख़ी फ़ैसला है, खुशाइन है, सख्त इकदाम है। KP में गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन मौजूद है, इस पर गौर किया जा सकता है लेकिन PTI वफाकी हुकूमत को सख्त इकदाम के लिए मजबूर कर रही है। बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कहा गया। चिनोट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा KP में गवर्नर राज लगाने पर अब तक नून लीग और पीपल्स पार्टी में कोई वाज़ेह तौर पर बातचीत नहीं हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।